I'd request Dr. Ranjit. I'd welcome him for his session on personal branding. Small introduction that Yeah, Dr. yeah, Ranjit sure. is a senior research engineer at the Department of Biology and Biological Engineering at Chalmers University of Technology in Sweden. So he'll be discussing on personal branding in life sciences. Sir, First of all, thank you for giving me an opportunity to speak at this platform. And my name is Ranjit, and I am currently associated with Chalmers University of Technology, and I will take you through my experiences. And the topic today I have chosen is personal branding in life sciences, creating your own USP. Why I say so is that you will realize over the period of time when I go through my talk, I will keep it very short. It's just like an introduction to the topic because I think 30 minutes would not be uh, like doing justice to this topic. So, one thing before I start my talk, I want to say, uh, am I audible? Can you hear me first? yes, sir. So, I want to say that I am not an expert on the topic. So, I don't claim to be that I know everything. I'm just sharing my personal experience. And my intention is to make you aware, and you can reach me out through Google or Gmail. Uh, I am just using my example so that I do not offend others. And I have gone through the list of seminars that has been covered in this series of life sciences career insights seminars. And I feel that most of the seminars have one thing in common. That sorry, I don't know how it's moving before. So it has one thing in common, and that one thing is that every little thing that comes up in each seminar is that they want to create a point of difference. Point of difference means that how can you be differentiated from others in the crowd. So my topic will be more on this, and I will reflect more on this topic. So what according to me is a personal branding is that you are most satisfied when what you are doing is in complete sync with who you are. आप कौन हैं और आप क्या कर रहे हैं, अगर आप तारतम्य बैठा सकते हैं तो यही सबसे अच्छा ब्रांडिंग है मेरे ख्याल से। और यही आपको मतलब हैप्पीनेस दे सकता है लॉन्ग रन में। नहीं तो आप एक थोपा हुआ करियर लेके बहुत आगे बढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है कि एक मोटिवेशन चाहिए, एक ये चाहिए, और मेरा एक ये भी इंटेंशन रहता है कि हमने ये रास्ता चुना, ठीक है, हमने बीएससी किया, एमएससी किया, उसके बाद नेट जेआरएफ किया, तो सब लोग यही करें, इसी राह पे चलें, ये कोई जरूरी नहीं है। एवरीबडी हैज टू ट्रीट देयर ओन पाथ। सो व्हाट आई एम गोइंग टू talk about is I will share my experience, but one should remember that we can be like uh, the milestones in the path, but you have to choose your own path as you move ahead in not only in life sciences, in your career and in your life. So I will tell why I have kept this ICMR and IRLH in middle. But long back, like I come from a very middle class family, and my schooling was done in Hazaribagh at St. Xavier's School. Uh, I entered into formal schooling from, I would say that properly, after class 7th, because my father had a transferable job and he was into a police department, so we used to get frequent transfers. And then I moved into St. Columbus College, which is a part of a Dublin University mission, and it's a constituent unit of Vinoba Bhave University. And I did my bachelor's from here. And the good thing about bachelor's, doing a bachelor, I did a bachelor's in biotechnology at that time, and it was fairly new. It was just running in, I think, two or three colleges in Bihar and Jharkhand. And after doing that, uh, it was a good experience in a way that we got some exposure into the lab atmosphere and how lab works. I also ended up doing a diploma from Bharatiya Vidya Bhavan at that time.
It was a office assistant and computer diploma course that I did. And I would say that that was my first formal introduction to this MS Office and kind of PowerPoint and other thing at that time. And it was kind of a evening course, and we did together when I was doing my bachelor's. Then, after searching for many universities like Gurukul Kangri and uh, 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 there was another HND Garhwal University. I cleared entrance of many universities and then finally decided to go through the JNU, and I ended up going in University of Calicut. So, like a homesick boy right from north who has not come out from Hazaribagh itself, moving to Calicut was a big change and it was a big leap. And then in University of Calicut, it taught us a lot. And the two good thing in this program was that I got to do good trainings at CSIR Intech, Chandigarh. And also I did a training at Institute of Life Sciences, Bhubaneswar. So there at Institute of Life Sciences, Bhubaneswar, I had a very bad health and I got trapped in hepatitis and I was very, very upset at that time. And that was the point where all these entrance examination I cleared. It was GATE, CSIR, JRF, and other exams which I don't want to name. Like there were many of this kind. But since I was not doing up with a good health, I didn't get much opportunity. And you know when you have this fellowship, it's like you are so there is a desperation because there is a time frame that you need to join within. So that led me to join immediately ICMR NIRRH, and I joined there, and it was like a turning point in my life. I got a very good exposure of the lab, and also there was something that in this period of time, my mother expired. So I was like, whether I should continue into research, what should I do? There was also a lot of turbulence in personal life as well as professional life. So then I chose to come close by, and first I decided to go to BHU, but there it did not materialize, and I ended up entering into CDRI. I did my PhD from CDRI, and one thing which is like apart from the PhD that I did, that's strikingly important as a student that we got to do, and this was like CDRI JNU combined, and we got our degree from JNU. So we got to go for a training which was conducted jointly by CSIR, IICT, and IIM Bangalore, and this is known as the Technology-Led Entrepreneurship Program. And this was the program that had changed my thinking immensely. It was a 1 month program which was meant for people who are into life sciences and who want to have exposure of how things work in a more general environment, and like a socio-scientific approach to science and an entrepreneurial approach to science. How do you take it? So inspired by this, I ended up doing one more diploma from Entrepreneurship Development Institute of India to just hone my skill in entrepreneurship and look for the avenues. And then, as everybody says, that you have to go for a post PhD experience. And I did not choose, I did not choose why I want to go out. My idea was that if I would have got a job in India, I would definitely have been staying there. But since like it's a ladder that it's an ever ending task. You go on just adding on. So I went to Uppsala University since, and it's one of the oldest university in Scandinavia. I got a very good lab, but the problem is that when you come first time out into the Western world, it takes time for you to adjust. Especially in my case, it took a little bit more time for me to adjust and get settled. By the time I got settled and started thinking about science, and there was stark difference between how we were like mentored in our PhD and uh, how the mentoring works here in Europe. So it was like kind of mixed experience. I didn't manage to get many publication out of here, and it left me with a sense of like what should I do at this point of time.
So then I ended up changing my field, and like it was like by chance that I entered into something which was more on an environmental biotechnology side, and we I ended up using more molecular biology tools, and the project was like it was called site directed environmental analysis using molecular tools. There were two different projects, and this was the time I gained some confidence. We were left independent. It was an industrial project, and I performed like quite well and fulfilled the project requirement. But from here, it was like I don't want to do any more postdoc. I want to return to India. That was in my mind, and I was just scrolling through, like googling for career opportunities. I was selected for the, because if you want to move immediately, there will be no more avenues appearing suddenly in India. So you have to plan way in advance. That I did not do. So what I thought that I'll just join whatever opportunity I get, and I was selected for uh, Amity University, Rajasthan. Uh, Amity University, Rajasthan. But at that time, I came across an advertisement that there is a scientist from Switzerland who is opening a new facility, and they require a protein chemist or someone who is trained in protein biology. So then I just talked to him, and it worked well for us. And it was a long-term project. And since I thought that I was going to Switzerland, but ultimately I ended up going to Siberia with this scientist because he was establishing this facility in Siberia. I went there, and it was really kind of a good lab. We started from scratch. I learned a lot of management thing with him, but within a span of 1 year, he was very much annoyed by the way the university used to function in in Russia. So he just voluntarily resigned, and because of that, we the entire group was dissolved. And at this point of time, I just moved to my parent university, took a guest faculty job in Hazaribagh, and was like moving between St. Columbus College and Vinoba Bhave University, teaching both graduate and postgraduate students. And that was my first exposure to teaching in the entire career. But something I found myself misfit in the system, to be very frank, because positions were contractual. You were paid through like whatever lectures you deliver, and it did not seem so rosy for me when I returned. So I started looking for avenues to return back. Finally, I returned to Chalmers University, and after coming here, I got a lot of opportunity to train myself in different universities of Sweden. So I have been to University of Gothenburg, Lund University, and Umeå University for different kind of advanced courses. And here I am now working as a senior research engineer at Chalmers. I This is a kind of a different title. It's not as a conventional postdoc because I got more into kind of a consultancy job and helping others who want help in life sciences to further multidisciplinary research. So this is how my brand looks, and this has come through by uh, like the whole phase that I have gone through in my career. So at this point of time, I also want to say that it's not only the background that whatever institution or whatever experience you take uh, will bring you in, but also one important key figure in this is your parents and how what kind of nurturing you have got in your life. So on the top you see my parents, my mother and father. My mother is no more. So now I will go into the straight into the topic, and this is what my brand look like at this point of time. And it's a changing thing. It's a dynamic thing. There will be more added into it.
So I would say that, have you ever tried Googling yourself? When you try to Google yourself, what kind of hits do you get? It's more important. So are you represented well in results, or it's like you are represented on something that you have commented on a Facebook or on a Instagram? If it is so, then I think there is a there is a need that you should prepare your own brand. And how to go for preparing your brand is, I'll tell you later. But according to Jeff Bezos, who is the founder of Amazon, he says that a brand is what people say about you when you are not in the room. So you have to think about that. That what people, it's all a perception game. What perception you want people to build about you is important. So I will give you my take on brand. So here brand is not PPE, that is personal protective equipment or something. For me, brand is that you have a product, you don't know what it is, then you add a personality to the product. Like uh, when I say Ruafja, then you can relate to the experience that you have with the Ruafja. So it will, mommy, Madhav, Madhav, please go. I'll I have a little son, and he has wake up now, so he's also coming in off and on. So you get the experience. So take it to a personal brand then. So whatever I have shown you till now, so whatever experiences you go through in your life, be it a success or a failure, it all adds to your experience and it builds your brand. And then you have a personality. What is your personality? It's a sum total of the soft skills that you have, the other things you do, the hobby that you take forward, everything included. And then that builds up your brand, and that is you. So now I I am a great fan of Sushant Singh Rajput, and I will take a quote from him. He says that I am noun in your life, but I am a verb in mine. And this speaks tremendous thing about any personality. So in Hindi, if we say, it will be going like this, that मेरा व्याकरण तुमसे अलग, जिसमें आज है कोई कल नहीं, मेरी जिंदगी उस विराट की अभिव्यक्ति है प्रतिफल नहीं. तुम जज थे, मैं दोषी न था, मेरा मौन खामोशी न था, मैं था नाम बस तेरे लिए, अपने लिए मैं कर्म था, पत्थर जो राहों में मिला, उसे जोड़ना मेरा धर्म था, मेरा संस्कार मेरा मूल है, जीवन मरण एक वर्तुल है. तो ये जो गैप है डेथ और लाइफ के बीच में, यू हैव टू, ये अंतराल को ही भरना है. और कितने अच्छे तरीके से आप इसको भरते हैं, वही आपका ब्रांड मैनेजमेंट है, वही आपका स्किल ऑफ ब्रांड मैनेजमेंट. तो तो ये जो प्रोडक्ट पर्सनालिटी और एक्सपीरियंस की बात मैंने की, और देन अगर हम सुशांत सिंह राजपूत की ही बात करें, तो वी जस्ट नो हिम एज अ एक्टर, बट ही इज मोर देन एक्टर. He is a forward thinker. He has a very good knack of what's going around in the world. He is a futurologist. He is a cricketer, a tennis player. He is a think tank also on himself. So if you go through his website, uh, which is called Self Musing, you will find the really good thought that you have. So then I want to quote Dan Schwabel, who is the writer of Me 2.0, and I recommend this book to everyone who is interested in building their own brand, a personal brand. And it says that your first impression isn't made with a firm handshake. जैसे पहले होता था कि हम सामने सामने मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, तो उससे हमारी परिचय होती थी. अब क्या होता है, इट्स विथ अ गूगल सर्च. कोई भी है, आपके नाम को सर्च करेगा, देखेगा कौन सा हिट आ रहा है, उस हिट पे आपका पूरा का पूरा पर्सनालिटी डिपेंड करता है. तो अगर आपका कोई, इफ यू डोंट हैव अ प्रोफाइल, और इफ यू डोंट हैव समथिंग दैट इंटरेस्ट यू, ट्राई क्रिएटिंग वन. सो व्हेन यू डू दिस, you should reflect. What should you reflect on? You should reflect on ऐसा क्या है जो मैं दूसरों से अलग करता हूँ और अच्छा करता हूँ. दैट यूनिक थिंग, दैट यूनिक सेलिंग प्रीपोजिशन, दैट यूनिक स्किल सेट that I have in the galaxy of 7.5 billion people who are there in the world.
दैट यूनिक थिंग दैट आई कैन डू बेटर। आपको अपने से पता करना है अपने बारे में, यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट व्हाट सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम योर पीयर्स। जैसे आप मान लीजिए कि इसको हम लोग मतलब यहाँ के लैंग्वेज में रिडंडेंसी कहते हैं कि मैं भी साइंटिस्ट हूँ, तुम भी साइंटिस्ट हो, तो तुम और मेरे में क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस उस पर डिपेंड करता है कि आपके अदर इंटरेस्ट क्या है। जैसे मान लीजिए मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं पोएट भी हूँ, तो या मैं राइटर भी हूँ, तो वो मुझे अलग कर देगा, थोड़ा सा डिफरेंशिएट पार्ट कर देगा। या कोई साइंटिस्ट है एंड ही हैज स्किल इन से प्रोग्रामिंग, सो ही विल बी मोर वांटेड इन सम सिचुएशन देन मी। सो ये जो है ना, मतलब जस्ट खाली फोकस की बस साइंस है, नेट करो, जेआरएफ करो, मरो इसी में, ये लाइन से हमको निकालना है। ये मतलब आपको, यू हैव टू एक्सट्रैक्ट द लाइफ आउट ऑफ द साइंस। आप अपने पूरे लाइफ को निकाल के उसको एक मीनिंगफुल, ये मतलब फुलफिलिंग बनाइए। एक ही पॉइंट को खाली डेवलप मत कीजिए। सो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट डू यू एंजॉय द मोस्ट। आप जबरदस्ती आप पे थोपा हुआ एक कैरियर, are you really enjoying this? Are you really enjoying going to PubMed or searching things? If you are not enjoying it, just leave it, please. There are many careers. You can do many good things. Don't be a bad scientist. Be a good writer, a good poet, anything. But don't fall in this trap. Also, I want to tell one thing here is that it also depends upon what kind of mentor or teachers you have. So sometimes you don't have interest, but you will develop eventually when you have a good teacher on your side. So you should be aware that what gives you a sense of accomplishment. Do you take the recommendation and feedback that comes to you in a positive sense? तो फीडबैक क्या फीड फॉरवर्ड बनता है क्या, कि जैसे आपको कोई फीडबैक दिया तो आपको लगा कि हाँ इस पे मुझे वर्क करना चाहिए, अगर मैं वर्क करूंगा तो मेरा ओवरऑल पर्सनालिटी इंप्रूव होगा, या जिस डायरेक्शन में बढ़ना चाहता हूँ वैसा मुझे मौका मिल सकता है। इसी तरह यू शुड हैव अ टाइमलाइन बोथ फॉर प्रोफेशनल, पर्सनल, योर स्पिरिचुअल वेलबींग। हर चीज के लिए एक टाइमलाइन बनाइए कि क्या आप करना चाहते हैं 2 मंथ डाउन द लाइन, 6 मंथ डाउन द लाइन। और वो छोटे छोटे अचीवमेंट्स और फेलियर्स को सेलिब्रेट कीजिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो अगर इस तरह से आप सेल्फ रिफ्लेक्ट करेंगे, क्या कि आउटवर्ड जाने के लिए दुनिया में बहुत कुछ है। जैसे अभी मैडम भी बता रही थी कि भाई मोबाइल है तो हमेशा फेसबुक पे मत लगे रहो, कुछ दूसरा चीज भी कर सकते हो, सर्च करो। तो उसी तरह आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए, आप इनवर्ट जाइए, आप खोजिए अपने आप को कि आपको क्या चाहिए। आपसे बेटर ये आंसर कोई नहीं दे सकता है। और जब आपको ये आंसर मिले तब यू गो फॉर ब्रांडिंग, कि हमको क्या ब्रांड चाहिए, इट शुड बी कंसिस्टेंट। सो आई विल quote Dr. Suez here, who is a writer, a cartoonist, and has done tremendous good work. He says that today you are you, that is truer than true. There is no one alive who is youer than you. The whole point of quoting this is that I want to say that you are unique and you should not end up just copying and being somebody else. So when you go for a personal, I'm not talking about LinkedIn or other stuff right now, but if you go on this process of building your own brand, you will realize that the only constant in the world is change. And if you see any successful person, they have been switching from one career to another maybe 5 to 6 times in their lifetime. So it is important to focus on those aspects also. And then it is important to learn that the people who excel are not genius. हम ऐसा मान के चलते हैं कि सब जो है मतलब एकदम तोप हैं या बुद्धिजीवी ही हैं। आपको बुद्धिजीवी नहीं होना है, बुद्धिजीवी बहुत हैं दुनिया में, उनसे बहुत तबाही मची हुई है। आप बुद्धि सेवी होइए, अपने बुद्धि से क्या आप सेवा कर सकते हैं और आपको क्या अच्छा लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस मौके पे आपको ये जानना जरूरी है कि इज टेक्निकल स्किल सफिशिएंट इतने पूरे प्रोसेस में, कि खाली हम लेलिंजर पढ़ लें या बायोकेमिस्ट्री जान लें यही खाली काफी होगा। तो जैसे आप इस सीरीज ऑफ टॉक में मैंने बोला कि बहुत सारा जो टॉक है वो पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, हाउ हाउ यू कैन बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन द क्राउड, उस पर बहुत फोकस रहा है। तो वही चीज है कि आपका सॉफ्ट स्किल कैसा है, इंटरपर्सनल स्किल कैसा है, क्या आप एक क्रॉस कल्चरल टीम में सेट बैठते हैं। देखिए स्किल तो कोई भी आपको दे देगा, आप कहीं भी ट्रेनिंग ले लेंगे, लेकिन वो जो चीज है कि आप किसी प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करते हैं, आप में लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम आ गया तो आप मतलब
आपका सॉल्यूशन फोकस है या प्रॉब्लम फोकस है? सॉल्यूशन फोकस मतलब आप खाली प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हैं कि उसके लिए कुछ ना कुछ निजात लाना चाहते हैं दुनिया में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना चाहिए। और एक चीज यहाँ पे मैं ऐड ऑन करूंगा, जो पीछे के टॉक से मैं सुनते आ रहा हूँ, कि एक ये है कि बीएससी करो, एमएससी करो, पीएचडी। अरे भैया, बीएससी एमएससी पीएचडी बहुत अच्छी चीज है, करिए, जरूर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए कि हम तो बीएससी एमएससी पीएचडी करते रह गए नॉर्थ वाले, और साउथ में जिनको एक्सपोजर था इंफॉर्मेशन का, वो कभी नेट जेआरएफ के चक्कर में नहीं पड़े। और आज आप देखिएगा थ्रू आउट द ग्लोब, साउथ इंडियन जो जो कि थोड़ा सा मतलब डेयर किए थे और थोड़ा अपने आप में इन्वेस्ट किए थे, उनको पता था कि यूरोप में फ्री एजुकेशन है, वो लोग मास्टर्स में ही निकल गए। और जो लोग मास्टर्स में निकले, दे हैव डन एक्सेलेंटली वेल, दे आर नाउ फैकल्टी एवरीवेयर। तो वो चीज को ध्यान में रखिए कि हम लोग के पास इंफॉर्मेशन गैप है, उस इंफॉर्मेशन गैप को भी फिल करना है। और बस एक ही रास्ता है, एक बस पत्थर की लकीर नहीं बनना है, ये मेरा सोचना है। मे भी बहुत लोग इससे एग्री नहीं करेंगे, तो लेकिन ये जरूरी है। तो आपको तीन चीज चाहिए जीवन में। पहला है कि यू नीड थ्री हॉबीज, वन इज टू keep you creative, the other one is to keep you in shape, and the last one is to make money. और अगर आप तीनों का ये डेडली कॉम्बिनेशन तैयार कर लेते हैं, या किसी दो का भी डेडली कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं, तो आप समझिए कि आपका जीवन सफल है और यू आर ऑन द राइट ट्रैक। लेकिन फोर्सफुली किसी कैरियर को मत चुनिए, चूज वो कीजिए जो आपका पैशन है, जो आपका इंटरेस्ट है। तो आप ये क्यों करना चाहते हैं, ब्रांडिंग क्यों करना चाहते हैं, या अपने आप को क्यों दुनिया के सामने लाइक पॉइंट ऑफ डिफरेंस के थ्रू रखना चाहते हैं? तो जब आप ऐसा करेंगे तो यू विल सी दैट यू विल गेट मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर जॉब इंटरव्यू एंड इंटर्नशिप। आपको अपने लाइक माइंडेड पीपल से एसोसिएट होने का मौका मिलेगा। आप ऐसा भी देख सकते हैं कि अच्छा, हमको जीवन में ऐसा कुछ मार्गदर्शन चाहिए, तो यू कैन रिक्वेस्ट फॉर मेंटरिंग, कि भाई मुझे मेंटरिंग चाहिए। और मेंटरिंग का मतलब ये नहीं है कि मतलब आपको एकदम हाथ पकड़ के चलना सिखा दे। इट इज important दैट mentor may be of the same subject, or it may be from another subject or another area where you want to hone up your skill. So you can get request for mentoring, or you can either mentor or you can be a mentee. There can be several chances of promotion when you are branding yourself in a proper way. Yes, you can find collaboration and partnership in many projects through this kind of like putting yourself out. And if you don't do it, somebody else will do it on your behalf, and then you will be labeled in a different way, which you are not. So yes, and then networking is very very important, because to be very frank, your network is your net worth. आपने जो linkages बनाए हैं, आपने जो नेटवर्किंग किया, वही आपका सही एसेट है। और मतलब अब देखिए कि मतलब एक जनरल मतलब यह है कि अब जो सोसाइटी है वो ज्यादातर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, हम इसके पीछे मतलब अटेंशन इकोनॉमी में हम जीते हैं हर पल। और उस अटेंशन इकोनॉमी में आपको अपनी ओर अपना अटेंशन खींचना है, तो आप क्या करेंगे, ये सोचना होगा। सो स्टीव जॉब के, आई वांट टू कोट स्टीव जॉब at this point of time, who says that your time is limited. वो अंतराल जो है वो बिल्कुल ही लिमिटेड है। So don't waste it living someone else life. You should not. You create your own success story. आप अपनी स्टोरी के महानायक खुद बनिए, किसी दूसरे का चुराया हुआ कैरेक्टर मत बनिए। So आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप इंटरनेट पे जाते हैं तो आप कम्युनिकेट, खाली कन्वर्सेशन, यू डोंट कम्युनिकेट टू कन्वर्स, बट यू कम्युनिकेट टू कनेक्ट। And when I say when you communicate to connect, you should be aware that who is your audience, कहाँ आप पिच कर रहे हैं, किन तक पहुंचना चाहते हैं। You have to be authentic throughout your like the way you represent yourself. ये नहीं है कि भाई आप एक अनप्रोफेशनल वे में अपना एक फोटो खिंचा लें और उसको लिंक्डइन पे डाल दें, तो वो भी सही नहीं है। तो आपको देखना है कि आप कैसा दिखना चाहते हैं, आपको पहले ये है। क्योंकि सारा खेल परसेप्शन का है, मतलब आपको एकदम जीनियस होने की जरूरत नहीं है। यू डिजाइन योर ओन यूएसपी, जो आपका योर ओन यूनिक सेलिंग प्रीपोजिशन क्या होगा, यू हैव टू डिजाइन। एंड योर एक्सपीरियंसेस इज द रियल, लाइक वो बोलता है ना दीवार फिल्म में कि तुम्हारे पास क्या है, तो मेरे पास माँ है,
और यहाँ पे आपकी जो माँ है, जो शशि कपूर की जो माँ है, वो आपके एक्सपीरियंसेस हैं। तो आप किसी के पास गाड़ी है, बंगला है, क्या है, उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है। आपके इंटरनली आपके पास क्या है, दैट मेक्स होल डिफरेंस। आपको हमेशा फेथफुल एंड कंसिस्टेंट रहना है। जैसे आप थोड़े देर के लिए झूठ बोल के थोड़ा आगे निकल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म आपको सस्टेन करने के लिए यू हैव टू बी ऑथेंटिक। और आप जब अपना दी बेस्ट देंगे ना किसी चीज में, तो यू विल बिकम ऑथोरिटी। तो क्या आप राइट कर रहे हैं, क्या आप शेयर कर रहे हैं, सारा कुछ स्क्रीन हो रहा है। आप इसको अदर वे कह सकते हैं कि जैसे उसका नेगेटिव सेंस में स्नूपिंग कहते हैं। आपका प्रोफाइल को सर्वेलेंस पे है, दुनिया देख रही है कि आप क्या कर रहे हैं। तो आपको एकदम वैसे ही प्रोफाइल को प्रोजेक्ट करना है जैसा कि आप चाहते हैं कि आप लोगों के सामने दिखें। और इस तरह से करके यू कैन क्रिएट योर ओन हैबिटेट एंड niche which will help you further your career, and further you can bring more richfulness to life. So again, I will quote Sushant Singh Rajput, where he says that often the differences between what is miserable and what is spectacular lies in the leap of our faith. हिंदी में बोले तो, दयनीय था यह अद्भुत बहुत, ये सवाल है जो दिल में लिए, मेरा मानना जो भी जवाब हो, इसमें खुलिए, खिलिए और खेलिए। तीनों चीज, आपको खुलना भी है, खिलना भी है और खेलना भी है। अंतर जो है विश्वास का, है विराट या संकीर्ण है, ये विश्वास ही है जो तय करे व्यक्तित्व प्रखर है या जीर्णशीर्ण है। What kind of personality you want for yourself? You are the best designer for it. People can just show you the path, but the onus lies on you. So this was what I had. So I am open for question now. I can take questions. Thank you. Thank you, sir, for this thought-provoking talk. I'm sure our listeners would have enjoyed it a lot, and they'll get a new perspective to think about themselves and to shape their career and them and their own personality. Uh, Just one question. One question. Just you have discussed about the USP, but not describe. Just Yes, you because describe you gave, USP. see, Sanjeev bhai, you gave me only half an hour. Half an hour is No, not no, enough no. to Just तो यूएसपी का yeah, मतलब just ये in है। brief. हाँ, तो वो हाँ, वो बाद में मेरे पास आया, मुझे मालूम था कि 45 मिनट मुझे मिलने वाला है, तो मैं उस तरह से सोच रहा था। तो यूएसपी का मतलब है यूनिक सेलिंग प्रीपोजिशन। जैसे जैसे रुआफजा के टेस्ट को आप जानते हैं, तो आप हमेशा उसी प्रोडक्ट के लिए जाएंगे, तो वो उसका यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है। तो जो बंडल ऑफ एट्रीब्यूट्स है, जो इमोशन आप क्रिएट कर देते हैं प्रोडक्ट को के साथ, वही आपका यूनिक सेलिंग प्रीपोजिशन होता है। हेलो। yes, sir. हाँ, तो कोई और तो क्वेश्चन है तो आई हाँ, एम ओपन। अगर किसी और का कुछ क्वेश्चन पूछना है तो वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हेलो सर। हेलो। 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 हाँ सर। सर आपने ऐसे बोला कि एमएससी का मतलब बीएससी करके एमएससी करो, मतलब सर अभी इस टाइम में आपने को पीएचडी करना ही पड़ेगा सर, मतलब फॉर टू हाँ, देखिए ये तो आपको सोचना है। जैसे आप इसमें बताया गया कि एक जेआरएफ कर लो तो आपका सारा पीड़ा दूर हो जाएगा। मेरा ये नहीं मानना है, आपको जेआरएफ करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए बाहर अपॉर्चुनिटीज क्या है। मेरे यहाँ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक लड़का था, वो आईसर से एक लेटर लिखा मेरे जो बॉस हैं उनको, कि मुझे मुझे आपके टॉपिक में इंटरेस्ट है और मेरे पास कुछ आइडिया है, मैं करना चाहता हूँ। तो आउट ऑफ द वे जाके, क्योंकि उन्होंने उनका पेपर पढ़ा था, उसके लिए रास्ता निकाला। वो समर्स में आया, यहाँ पे 3 महीने काम किया। हम मुझे लगता है उसका नाम ऋषभ था। और 3 महीने में ही डिड एक्सेलेंट जॉब। उसको पता था कि उसको क्या करना है। अगर आपको नहीं पता है कि आपको क्या करना है ना, तो आप ये जो भेड़ चाल है ना, इसमें घुसने का कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये आपके करियर को पूरा दिया। आप अपने पैशन को देखिए, हो सके तो कर लीजिए, जैसे सब लोग कर रहे हैं तो कर लीजिए, लेकिन आपको अपना एक सूट अपने लिए तैयार करना है, जो आप खुद कर सकते हैं, कोई आपके लिए नहीं करेगा। सर थैंक यू सर। थैंक यू।
Hello, sir. This is Shraddha. हेलो श्रद्धा। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने जो बताया जिस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया कि अगर आप साइंस और रिसर्च के स्टूडेंट हो तो सबसे हाँ, पहले आपको रिस्की होना चाहिए, रिस्क टेकर होना चाहिए। तो देखिए ही तो ही आप लाइक उस साइंस का अच्छे से यूज़ कर सकते हो। लाइक ये बहुत बड़ी बात है। तो मैंने तो मेरा कहीं रिस्क क्वेश्चन। का ये भी नहीं कहा कि रिस्क लेना है कि नहीं लेना, क्योंकि मेरा अपना लाइफ जो है, आई कैन टेल यू, मैं सिर्फ फ्लो में चलता हूँ। मुझे जहां जीवन ले गया मैं चला गया। मैंने कोई अपने से एफर्ट नहीं लगाया। कोई बोल दिया, जैसे हम लोग बीएससी कर रहे थे तो हमारे एक प्रोफेसर थे, उन्होंने कह दिया कि देखो जी, ये कोर्स करने से आदमी बाहर जाता है। तो मेरे दिमाग में यही चीज बैठ गया कि ये कोर्स करने से आदमी बाहर जाता है, तो हम लोग बाहर चले गए। मेरे फ्रेंड यहाँ सुनील बैठे हुए हैं, वो रिलेट करेंगे इससे कि ऐसा ही हुआ था। क्लास में हम लोग बैठे थे, हम लोग को खुद पता नहीं था कि हम लोग बायोटेक्नोलॉजी क्यों कर रहे हैं, उसका क्या फायदा होगा। तो रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा जीवन में, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। एकदम अंधाधुन वाला रिस्क मत लीजिए। शेयर मार्केट वाला रिस्क नहीं लेना है कि पूरा पैसा यस डूब सर। गया। वही क्वेश्चन था कि मतलब सब कोई चाहता है रिसर्च में एक अपना एक जो होता है अचीवमेंट वो हाँ, बहुत डिफरेंट करे और बहुत एक एक्सट्रीम लेवल का करे कि उसको उस चीज़ में उसको उस तरीके से देखा जाए। हाँ, तो और बट जब हम लोग अपना कोर्स कर रहे होते हैं तो वो प्रेशर होता है हम लोगों पे कि अपना एकेडमिक को पूरा करना होता है और हम लोग उसमें ऐसे इन्वॉल्व हो जाते हैं कि दोनों को बैलेंस करना जो हम करना चाहते हैं और जो हम कर रहे हैं उसमें बैलेंस बनाना बहुत टफ हो जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। और अगर जब हम अपने एकेडमिक सेशन में जैसे मतलब मेरा अभी एकेडमिक अभी पीरियड चल रहा है, मेरे को हम्म, मास्टर्स करना है फिर बस फर्दर ये करना है। अगर वो चीज़ में हम कुछ ऐसा अचीव नहीं कर पाए बट हम्म, मेरे को करना वही है जो हम हमेशा से चाहते हैं, जो जिस चीज़ के लिए हम पैशनेट है, तो हम्म। फिर वो कैसे उस चीज़ को ये दोनों चीज़ कैसे मेरे को मिल पाएगा या फिर एक चीज़ छूट भी जाता है दूसरे को हम कैसे मैनेज कर पाएंगे? देखिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं सुशांत सिंह राजपूत पे चला जाऊंगा। कि देखिए, यस सर। वो उस बंदे को, वो बंदा ओलंपियाड, फिजिक्स ओलंपियाड जीता हुआ था। उस बंदे में क्वालिटी थी, इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, लेकिन उसका पैशन था। सबके साथ ऐसा नहीं होता है। जैसे मैं भी बताऊं तो मैं पेरेंटल प्रेशर में, घर में यही डॉक्टर इंजीनियर और इसके अलावा कोई आगे सोचता नहीं है। तो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाए तो चलो भाई साइंटिस्ट बन जाते हैं, ऐसा हो जाता है। लेकिन आप ये सोचिए कि रियली आपको क्या करना है। तो उसमें आप देखिएगा कि सुशांत क्या किए कि वो डिग्री पूरा करने से पहले ही एग्जिट कर कर गए, थोड़ा एक्टिंग की। और उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी को आप रीड करेंगे तो ही इज ए जीनियस। उसको सब कुछ आता है, बहुत किया, पैसा भी बनाया, सब कुछ किया। क्यों? क्योंकि उसने वो चीज लिया पैशनेट होके, जो वो करना चाहता था। तो आपको उसका रास्ता मिलेगा। आप वैसे ही मेंटर खोजेंगे, वैसे ही लोग से आप एसोसिएट होंगे। इसीलिए ब्रांडिंग जरूरी है, इसीलिए इंट्रोस्पेक्शन जरूरी है। अभी क्या होता है कि भैया तुम एमबीए पढ़ लो, एमबीए पढ़ लो, तो एमबीए वो पढ़ा हुआ है लेकिन एमबीए का उसको कोई ज्ञान नहीं है, बस किताबी कीड़ा है। और वो क्या करेगा? वो ही इज अ सेल्समैन। राइट और रॉन्ग? तो यस ये सर। ये ये है कि आप भीड़ चाल में मत चलिए। आप यू फाइंड योर ओन पैशन एंड ट्राई टू बैलेंस अ लिटिल बिट between your passion and your profession. And the इसमें moment, इसमें मैं खुद का अपना एग्जांपल जोड़ना चाहूंगा टू मोटिवेट द स्टूडेंट, है yes, ना। जैसे मैं स्कूल पीरियड से ही मैं बिल्कुल ये था, मोटिवेटेड था कि मुझे सोशल वर्क में मतलब करने मतलब सोशल कॉन्टैक्ट से रिलेटेड वर्क करना है। लेकिन जैसे एज 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 यूजुअल फॉर बिहार पेरेंट्स, है ना, वो लोग हम लोग को मोटिवेट करते हैं डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, जैसे मतलब और जो मिलता गया आगे फॉरवर्ड हुए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो कहिए, मतलब मेडिकल्स नहीं निकला और हम लोग बीएन कॉलेज में अप्लाई किए और बायोटेक में गए। तो जिस सिर्फ बायोटेक में इसलिए गए कि चलो एक डिग्री ले लेते हैं, लेकिन जब वहां गए और इतना अच्छा फ्रेंड सर्कल और इतना एक्सपोजर था, तो फिर लगा कि एजुकेशन का लास्ट पार्ट चलो मास्टर्ड भी कर लेते हैं साथ में, क्योंकि जेएनयू करंट सेशन में ही निकल गया, क्योंकि मैं वही टर्मिनेट करना चाह रहा था कि आगे हमको सोशल वर्क में आना है, क्योंकि ये मेरा पैसन नहीं था। लेकिन लगा कि चलो मास्टर्ड कर लेते हैं। मास्टर्ड गए तो अब वहां देखे कि रिसर्च बहुत अच्छे से हो रहा है, आगे पोस्ट डॉक हो सकता है, आगे ये exactly. फिर और गेट से मैंने निकाल लिया। तब फिर मुझे जब मैं उसमें एक इंटर्नशिप होता है 6 महीने का,
तो जब मैंने रिसर्च लाइफ देखा तब फिर वहां पे एनालाइज करने लगा कि इस तरह से तो मैं तो स्टेप बाय स्टेप फंसता जा रहा हूँ इसमें। मतलब मेरा पैशन कुछ और था और मैं इसमें ट्रैप होता जा रहा हूँ। और जब सीनियर्स को और जब जो सिखाते थे हम लोगों को, तो उन लोगों से पूछते थे, हम लोग दादा बोलते थे वहाँ पे, तो दादा कितना दिन तक ये काम करना होगा, मतलब ये होल लाइफ तो इसी तरह से रहेगा। तब मैं एनालाइज किया कि मेरा लाइफ तो इसी बैक्टीरिया और वायरस के साथ चला जाएगा फिर। तो फिर जो मैं सोचा था तो फिर मैं सोचा तो ये काम तो कर नहीं पाऊंगा। और आपको पता होगा कि उसके बाद मैंने कहीं भी कोई भी उसके बाद कोई जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया, और जस्ट वहीं से मैं क्विट किया और सीधे मतलब पटना में आके और अपना ऑर्गेनाइजेशन संजीवनी बायोटेक फाउंडेशन, जो मैं करना चाहता था कि चलो डिग्री तो है, बाद में जॉब कर लेंगे, लेकिन कम से कम 3 साल 5 साल देख करके अपना पैशन को आजमा लेते हैं। और इतना अच्छा रहा कि ये तो मतलब ये सामने दिख रहा है कि दीज आर द अचीवमेंट ऑफ माय पैशन, कि मैंने टीचिंग का मैंने कोचिंग तो स्टार्ट किया, लेकिन आज भी मैं समझता हूँ कि हमारे स्टूडेंट इतने कनेक्टेड हैं, वो शायद हमारे नेचर और हमारे काम करने के तरीके और मेरी ऑनेस्टी और जो भी ये मेरा एक इन लोगों के साथ अटैचमेंट रहा, आज भी ये लोग अटैच्ड है। और देखिए फिर भी फिर मैं एक जॉब को अटेम्प्ट इसलिए लिया कि वहाँ पे इनसिक्योरिटी दिख रहा था, क्योंकि आगे मैरिड लाइफ है और आप हमेशा सोशल लाइफ से अपने लिए सोशल लाइफ से आप कनेक्ट हो रहे हो, और पर्सनल लाइफ को अगर छोड़ दोगे तो वहाँ फिर अनबैलेंस होगा। तो मैंने उसको बैलेंस करने के लिए एक छोटा सा जॉब ज्वाइन कर लिया। एज ए मैं जस्ट +2 टीचर हूँ। अगर आप मेरा सीवी देखेंगे तो कुछ और होना चाहिए था। लोग पूछते भी हैं, मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जब मिला तो मेरा सीवी देख के बोले कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। उन लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट टीचर तो वो बनते हैं जो बिल्कुल फेल्योर होते हैं या कहीं नहीं कुछ कर पाते हैं। तो जब मैं उनसे बोला कि नहीं सर, जस्ट मेरा पैशन है सोशल कॉन्टैक्ट और लोगों से जुड़ना, और आज देखिए मतलब अभी जस्ट मैं और एक प्रोजेक्ट लाने जा रहा हूँ, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हम लोग का, और सब लोग हेल्प भी कर रहे हैं, कॉपरेट कर रहे हैं, और इसको कनेक्ट कर रहा हूँ सोशल को ये को, और उसी दरमियान ये सब प्रोग्राम भी चल रहा है। तो हमको लगता है इसमें मुझे बहुत खुशी होती है। मतलब कम पैसा है, कम सैलरी है, लेकिन परिवार एक तरफ चल रहा है, लेकिन उससे ज्यादा हमको और अचीवमेंट क्या है वो तो आप लोग बताएंगे और आगे लोग बताएंगे। थैंक यू। नहीं, संजीव आपने शेयर किया, थैंक यू। और मुझे भी लगता है कि आप जो काम कर रहे हैं काफी सराहनीय काम है। देखिए, बिहार और झारखंड के जो बच्चे हैं, ऐसे तो आपका सब जगह जा रहा है और ग्लोबली लोग सुन रहे हैं, पूरे वेब पे काफी लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, लेकिन इस तरह का कोई मतलब कॉन्सर्टेड प्रयास नहीं हुआ था। देखिए, सभी लोग इंडिविजुअली, मैं मानता हूं कि हम लोग बहुत धुरंधर हो सकते हैं, लेकिन एज अ टीम हमको धुरंधर होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ताकि हम जो अपने साथ के लोग हैं उनको सबको ही मतलब आगे बढ़े। ऐसा नहीं है कि हम उस प्रोसेस में आगे बढ़ गए तो हम दूसरे के लिए और हर्डल क्रिएट कर दें कि नहीं वो कुछ नहीं कर पाए। तो ये चीज नवोत्थान का अच्छा रहा है, वो काफी सराहनीय कदम है उनका जो लोग लेके आए हैं इस तरह का सेमिनार्स और आउटरीच प्रोग्राम्स। रंजीत भाई, हेलो। लक्ष्मी जी। नमस्कार। ये नमस्कार काफी सर। अच्छा रहा है ना टॉक। तो एक क्वेश्चन है मनीषा का, आप चैट बॉक्स में देखिए। मनीषा का, देखिए पटना इससे मैं उतना वो नहीं हूँ। हाँ हाँ, सेंट्रल लेकिन यूनिवर्सिटी अच्छा साउथ बता, गया हाँ से। अच्छा बोल दीजिए ना वो। हाँ, प्लीज एड्रेस माय क्वेश्चन सर, दिस विल बी ऑफ ऊपर इमेंस है कि हेल्प। आई डिड माय बैचलर्स इन बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम पटना साइंस कॉलेज हाँ and doing my masters in life sciences from Central University of South Bihar and want to do my PhD in wildlife conservation or ornithology. How can I make my career? Can you please suggest some platform or ways should we students get solutions of our query? देखिए, प्लेटफॉर्म तो एक आपको संजीव ने दे ही दिया है, तो उस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको बहुत सारे एक्सपर्ट से आप कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो आप बोल रही हैं, मेरे हिसाब से मैं तो खाली एक जानता हूँ, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जहाँ पे आप इंडिया में अगर चाहें तो वाइल्ड लाइफ का कर सकते हैं। दूसरा चीज है कि चूंकि आप मास्टर्स प्रोग्राम में हैं, आप पेपर्स पढ़िए, देखिए किससे आप कनेक्ट करते हैं। और जैसे हमारे यहाँ स्वीडन में काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाते हैं, तो यू ट्राई टू कनेक्ट टू देम डायरेक्टली। पीएचडी पोजीशंस ओपन होता है और इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं और यू कैन अप्लाई फॉर दिस एंड आई थिंक यू विल गेट योर वे आउट। So don't be like shy to write to the people whose paper you are referring.
The other way is that be open. If you really want to excel, I would not limit you that you should only do your PhD in India. You can look for opportunities abroad also. So and So and and if you are not very passionate about going for a PhD, then please don't do it. That's my advice. so I want to Yeah, add, sir. yeah, So please. here in Bihar, we have issues for getting faculty position. Like, sir, for bachelor's in biotechnology, Yeah, we had a case in our university that respective courses like BSc biotechnology and life science courses, they are not recognized, sir. So that's why yeah, I asked this question, because, sir, I did my bachelor's in different field, master's in different, and then PhD in different. Then I'm confused at where will I get my job and where will I apply for yeah. job. Yeah, Uh, so I job. think you should go back through my presentation and do a little bit of reflection. At the same time, I Yes, want sir. to say that देखिए हम लोग जो अब यहाँ पे पहुंच गए हैं उनके मैं अपने बारे में बता सकता हूँ कि एक बहुत 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 थिन लाइन है। थिन लाइन इसलिए है कि कुछ लोग जो हैं वो पोस्ट डॉक रह गए। 90% लोग जो हमारे साथ निकले हैं उनकी ये मजबूरी है कि उनको पोस्ट डॉक करना पड़ रहा है क्योंकि उनको कमेंसुरेट फैकल्टी पोजीशन इंडिया में नहीं मिल पाया। ये एक बहुत बड़ा सच है जिसको हम लोग नेगलेक्ट करते हैं। हमारे साथ CDRI से 24 लोग हमारे बैच में थे जो PhD किए हैं, उसमें से मुश्किल से 3 या 4 लोगों को फैकल्टी पोजीशन मिली। जो रेस्ट 20 जो ब्राइट माइंड्स हैं वो क्या करें, उनके Yes, लिए sir. क्या रास्ता? तो ये सिस्टम का फेलियर है, इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते। और दूसरा ये मुझे लगता है 80% के लिए अगर अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दिया जाए ना तो वो लोग भारत के विकास में मदद कर सकते हैं। लेकिन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड ज्वाइनिंग अस। और अब ये सेशन अब कंक्लूड कर रहे हैं हम लोग, और इसके बाद अब थैंक यू। लेफ्ट कर सकते हैं आप लोग।